it is extremely distressing to see a vilification campaign being run against the district court and the high court. Let us be very clear. Either Mr. Chaudhary is a legal illiterate. He does not understand what in the interest of justice means. For him to spin it, to cast aspersion on the judges, I am believing he is innocent. Probably he does not understand legal language. He's a legally illiterate person. That is why he can take out this meaning from that phrase. But forget that for a second. Let's come to the facts of the case. The facts of this case are visible to the naked eye, but evidentiary rules require some evidence to be presented in a certain manner. So let's come to that now. What is being objected to is science. This is like saying Earth is flat, but we will not let any scientific evidence prove Earth is not flat. So when the scientific evidence will come in, it may well, let us assume for a second, let us assume contrarily to all facts known to everybody, let us assume that the Muslim side gets evidence in its favor. Then they should be very happy because they would scientifically prove that a mandir was not destroyed. They would scientifically prove that there is nothing there which belonged to a mandir. They will scientifically prove that there is no shivling. There was never a mandir existing there, and then they should be happy. So why are they opposing the science is the fundamental question which every viewer can understand. What will happen with science? It will establish facts with modern technology daily in courts, from district court to Supreme Court. Evidence and scientific proof is accepted in all matters, criminal, civil, commercial. So what is happening here? You are effectively, as I said, objecting to science. Now that objection everybody can understand. And one last thing on Places of Worship Act. To me, this is the most communal piece of legislation ever brought. And it is disappointing that BJP, having the power, is not repealing it in the parliament. But of course, the constitutional challenge is pending before the court, and we will see what happens there. It's not just about interest of justice that the judge spoke about. The judge also said, you know, whenever this survey is carried out, in the opinion of the court, the scientific investigation proposed to be carried out by the commission is necessary in the interest of justice and shall benefit the plaintiffs and defendants alike. Now, before I take that up with Professor Atikur Rahman, I quickly want to go across to Shalabh Mani Tripathi, क्योंकि त्रिपाठी जी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं. अभी इस डिबेट के दौरान भी शुरुआत से आरोप लग रहा है कि बीजेपी इसको 2024 के पहले एक मुद्दे की तरह बुनाना चाहती है. इलेक्शन का वक्त आता नहीं है कि आपको मंदिरों की याद आ जाती है. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? देखिए, कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोए न दे, यानी कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे. आप देखिए किस प्रकार की डिबेट हो रही है. ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु के लिए रात में पहुंच गए और रात में अदालत जब खुल गई तब ये सवाल नहीं खड़ा करते कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो अफजल गुरु के लिए रात में कोर्ट क्यों खोली गई. आज वो तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं. ये वो लोग हैं. देखिए, इस तरह बात नहीं हो पाएगी. ये कौन है जिनको डिबेट के बारे में ऐसे कैसे बात हो पाएगी? ये जाहिलियत यहाँ मत दिखाइए. यहाँ जाहिलियत मत दिखाइए. यहाँ जाहिलियत मत दिखाइए. यहाँ प्लीज जाहिलियत मत दिखाइए. अपनी बात पूरी करने दीजिए. यहाँ प्लीज जाहिलियत मत दिखाइए. जाहिलियत मत दिखाइए. प्लीज जाहिलियत मत दिखाइए. जाहिलियत मत दिखाइए. देखिए, जो औरंगजेब ने किया सैकड़ों साल पहले, जाहिलियत मत दिखाइए. फिर जाहिलियत मत दिखाइए. नहीं, जाहिलियत मत दिखाइए. नहीं, जाहिलियत मत दिखाइए. जाहिलियत मत दिखाइए. जाहिलियत मत दिखाइए. वो पता है मुझे, पर दिखाइए मत. दिखाइए मत. जो औरंगजेब नहीं पता है पर दिखाइए मत. नहीं पता है पर दिखाइए मत. नहीं पता है पर दिखाइए मत. जाहिलियत दिखाइए मत. अच्छा, ठीक है. पर्सनल कमेंट्स एक दूसरे पर आप मत कीजिए. मेरी ये गुजारिश है कि पर्सनल कमेंट से बचिए. इशू पर बात करते हैं. त्रिपाठी जी, जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए. देखिए, मैंने तो बोलना ही शुरू किया. उसके पहले ही देखिए कोई कूद पड़ता है. औरंगजेब ने जो सैकड़ों साल पहले किया वो टीवी डिबेट में करना चाहते हैं, तो इनको बता दीजिए कि अब बहुत कुछ बदल चुका है. मोदी जी का शासन है, सब तरफ बिल्कुल रामराज्य की स्थिति है, तो ये यहां पर नहीं चलेगा. आपकी टीवी डिबेट में यहां पर आके आक्रांताओं जैसा व्यवहार नहीं चलेगा. मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको डर क्यों लगता है सर्वे से. आपको सर्वे से खौफ क्यों है? नहीं, जाहिलियत मत दिखाइए. मत दिखाइए. पता है मुझे, सबको पता है. दिखाइए मत. नहीं, सबको पता है. दिखाइए मत. एक मिनट. जाहिलियत मत दिखाइए प्लीज. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं. एक मिनट. जाहिलियत दिखाइए मत. एक मिनट. त्रिपाठी जी, एक मिनट. त्रिपाठी जी, एक मिनट. इशू पर बोलिए. किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है किसी को भी. अपने ओहदे का किसी को भी यहाँ पर पावर दिखाने की जरूरत नहीं है. प्लीज टॉपिक पर बात कीजिए. जी नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए. मैं तो सबकी बातें तब से 20 मिनट की डिबेट हो चुकी थी. 21 मिनट की. मैं तब नहीं, 21 मिनट की डिबेट में मैं सबकी झूठ बकवास सुनता रहा. मेरी बात ही तो आ जाने दीजिए. ये कौन सी बात है कि आप सुनना भी नहीं चाहते? मैं तो कह रहा हूं सर्वे से डर क्यों लगता है भाई? सर्वे में कौन सा पाप निकल के सामने आ जाएगा? सर्वे में कौन सा गुनाह निकल कर सामने आ जाएगा?
पहले तो बोलते थे नहीं साहब बिल्कुल गलत है, ये जो दावा है बिल्कुल फर्जी है, वहां पर तो कभी मंदिर था ही नहीं, कभी कोई तोड़फोड़ हुई नहीं, कभी कोई आक्रमण हुआ नहीं। अब जब सर्वे का आदेश हो गया तो क्यों खौफ लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? क्यों? क्योंकि जो इस देश में आक्रांताओं ने किया है, और मैं कहना चाहता हूं बहुत दावे के साथ कि तमाम सारे लोग जो अपने नाम के आगे तमाम सारे तमगे लगा के चल रहे हैं, उनके पूर्वजों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ है ये इतिहास। मैं फिर से आपको याद दिला दूं मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल यह है कि आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप कोर्ट के जरिए किया है, नहीं, आरोप आप पर यह लग रहा है कि आप कोर्ट के जरिए, अदालतों के जरिए अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, यह आरोप आप पर लग रहा है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बयान क्यों दिया जब मामला कोर्ट में चल रहा है। इन आरोपों पर जरा अपना जवाब दीजिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। नहीं, क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया? क्या ओवैसी ने बयान नहीं दिया? क्या और पार्टियों के लोगों ने बयान नहीं दिया? क्या शफीकुर रहमान बर्क ने बयान नहीं दिया? और क्या इस देश में जो न्यायपालिका है उस पर लेकर सवाल खड़ा करेंगे? मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए कि ये कुरान को सर्वोपरि मानते हैं या देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं प्राउड हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है मैं इसको ऊपर मानता हूं। तो जो लोग आज न्यायालय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि देश की न्यायपालिका पर उनको भरोसा नहीं है, यानी देश के सिस्टम पे भरोसा नहीं है, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, तो देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो भरोसा करना सिखाएंगे। नहीं, इस तरह का लहजा नहीं, कानून इस लहजे की कोई जरूरत नहीं है, इस लहजे की कोई जरूरत नहीं है, इस लहजे की कोई जरूरत नहीं है त्रिपाठी जी। कोई किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। इसकी आजादी भी उसी संविधान ने दी है। इस देश में रहने वालों को अपने मन मुताबिक दायरे में रहकर काम करने की इजाजत और आजादी भी उसी संविधान ने दी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं।